Assalamualaikum students. Satyan Education Services, Pakistani Studies, Class 8, Worksheet number 1. Dear students, I will explain you this worksheet. It is related to your book chapters 1, 2, 3 and 4. In this worksheet, you will find some blanks, some short and long question answers and a map. Do all this work in your copy neatly. Now come to page number 1. Question number 1, fill in the blanks. Now these blanks are taken from your book chapters 1, 2, 3 and 4. I will tell you the topic and chapter name. You have to read that topic thoroughly and you can find easily these blanks there. Number 1, the origin of ideology is dash. It is from chapter 1. Ideology का chapter हमारा chapter 1 है and the topic is meaning of ideology. Chapter blank number 2, dash is the complete code of life. It is from chapter 1 and meaning of ideology. Blank number 3, commitment means devotion with dash. Now it is from chapter 1 and topic number 6, ideology and national character. Blank number 4, the British were very much uncomfortable with the Hindu-Muslim dash. Now this is from chapter number 2. अब देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है कि वो कौन सी चीज़ थी हिंदू मुस्लिम की जिससे ब्रिटिश बहुत अनकम्फर्टेबल थे. तो इट इज़ फ्रॉम टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ टू नेशन थ्योरी. ठीक है. नंबर 5, इन द ईयर डैश द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 6, एक्ट ऑफ 1935 एंड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. ठीक है. Blank number 6, a boundary commission was constituted under the chairmanship of dash. यानी एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया था किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में. तो ये ब्लैंक आपकी चैप्टर 2 टॉपिक नंबर 7 और उसके पार्ट रेड क्लिफ अवार्ड से लिया गया है. Read thoroughly this topic and you can find easily. Number 7, Mir Jafar Khan Jamali was the famous personality of dash province. अब देखिए ये टॉपिक किससे लिया जा सकता है. आपके चैप्टर 2 का एक टॉपिक था जहाँ पे आपने हमारे प्रोविंसेस के बारे में पढ़ा था कि उनकी क्या स्ट्रगल थी फॉर द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान. तो ये चैप्टर 2 के टॉपिक 8 और बलूचिस्तान से लिया गया है. नंबर 8, मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन. नाउ दिस इज़ एन ईजी वन एंड यू कैन फाइंड चैप्टर नंबर 2 टॉपिक नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग. Read thoroughly this topic. Number 9, President Ayyub resigned on dash. Now this is from chapter number 3 and topic number 4, Constitution of 1962. अब प्रेसिडेंट अयूब का जिक्र हमारे चैप्टर 3 में आया है और जब जहाँ पर चैप्टर 3 में हम अपने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस की मेकिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 पढ़ेंगे तो इजीली यू कैन फाइंड द आंसर. नंबर 10, अबाउट डैश हेड्स ऑफ मुस्लिम स्टेट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस. अब कितने मुस्लिम स्टेट के हेड्स थे जिन्होंने सेकेंड इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हुई थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, शरीक हुए थे. इट इज़ फ्रॉम बुक चैप्टर 3 एंड टॉपिक नंबर 7, recognition of Bangladesh.
ये टॉपिक आप थरली रीड करिएगा तो वहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकेंगे इसका आंसर। नाउ नंबर 11, अबाउट डैश Hindus were living in East Pakistan. It is from book chapter 3 and topic number 6, the fall of East Pakistan. ठीक है, ये टॉपिक आप थरली रीड करेंगे, यू कैन फाइंड इजीली द आंसर। नाउ द ब्लैंक नंबर 12, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। Now the blank number 12, Pakistan, Afghanistan and Turkmenistan have signed a protocol on dash through pipeline. This blank is from your book chapter 4 and the topic is importance of Pakistan's location. Blank number 13, Karakoram range is situated in the dash of Great Himalayas. It is from chapter 4 and topic number 2, physical features of Pakistan. You will read the topic completely and you will find the answer easily. Number 14, an extensive area in the southeast of Pakistan is covered with dash. Now it is from chapter number 4 and topic number 4. Number 15, pollution means such changes in the dash. अब वो कौन सा हमारा टॉपिक है जहाँ पे हमने pollution की बात की थी? It is from chapter 4 and topic number 4. आप pollution का टॉपिक रीड करेंगे, वहाँ पे ये आपको easily मिल जाएगा। यानी वो कौन सी चेंजेस हैं जो कि पॉल्यूशन की वजह से हमारी चारों तरफ में हमें नज़र आती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, व्हाट इज़ आइडियोलॉजी? नंबर 2, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इस्लाम? नाउ दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड chapter number 2. 1 and part 2 questions are taken from chapter number 1. Read thoroughly the topics, what is ideology and the principles of democracy in Islam, and you can write 4-line answer from there. Number 3, write 4 lines on Frizi movement. Now it is from chapter number 2 and read the topic फ्राइजी मूवमेंट, और इसके ऊपर आपको 4 लाइन्स लिखनी है कि ये फ्राइजी मूवमेंट क्या थी, इसके फ्राइजी मूवमेंट के को चलाने के क्या 4 रीजंस थे। ठीक है। नंबर 4, राइट 4 रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। अब पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, यहाँ के सिटीजन्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? It is also from chapter number 2. Now question number 5 है, why constitution is necessary by a country? It is from chapter number 3 और जो कि हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जो चैप्टर है कि सबसे पहला ही टॉपिक है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नेसेसरी होता है किसी भी कंट्री के लिए, ये आपको बताना है। राइट एनी 4 कॉजेज ऑफ द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। नाउ यू हैव टू राइट 4 कॉजेज फॉर द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, के ईस्ट पाकिस्तान हमसे क्यों अलग हुआ था, इसके 4 कॉजेज आपको लिखने हैं। नंबर 7, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान? अब आपको ये चैप्टर 4 से रिलेटेड है कि इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो भी इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स हैं ये चैप्टर 4 में आपको मिलेगा आंसर इसका, उनके नाम लिखने हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान।
इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 और जो हमारा टॉपिक है डेजर्टेड एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान का, वहाँ से आप 4 डेजर्ट्स के नाम लिखेंगे, ठीक है, जिसमें कोस्टल का भी आप डेजर्टेड एरियाज़ के नाम लिखेंगे। नेम द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को कितने क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है, ये भी चैप्टर 4 से है। यू हैव टू फाइंड द आंसर फ्रॉम दैट चैप्टर। नंबर 9, नेम द सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। अगेन इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 और पाकिस्तान की कितनी सी पोर्ट्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ मैप ऑफ पाकिस्तान in which show the climatic regions of Pakistan. Now this map is from chapter number 4 and the topic is climatic regions of Pakistan. यहाँ पर आप इजीली ये मैप फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर आपने ये टॉपिक लिखा हुआ है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको शो करनी है। नंबर 1, सब ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड विद ब्लू कलर। अब ये मैप आप इसी तरह से अपनी कॉपी में बनाएंगे और वहाँ पर सब ट्रॉपिकल कोस्टलैंड को ब्लू कलर से शो करेंगे। नंबर 2, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लो लैंड्स विद ब्राउन कलर। अच्छा, कोस्टलैंड का एरिया कहाँ पर आएगा, लाजमी ये आएगा आपका पाकिस्तान के नीचे के एरिया में, हमारे जहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है, जाहिर है कोस्ट लैंड शो करनी है, तो ये इजीली आप मैप में देख सकेंगे और फिर ब्लू कलर से बनाएंगे। सब ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड ये आपको ऊपर के पाकिस्तान के एरिया में है, ये ब्राउन कलर से शो करनी है। सब ट्रॉपिकल हाईलैंड विद ग्रीन कलर, ये एरिया भी आपको ग्रीन कलर से शो करना है। सब ट्रॉपिकल प्लेट्यू विद ऑरेंज कलर, ये आपको ऑरेंज कलर से शो करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे 2 दिए गए हैं। नंबर 1, लर्न एंड राइट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ये आपको अच्छे से याद करना है और नीटली अपनी कॉपी में लिखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। It is from your chapter number 3. Describe the importance of the location of Pakistan in the South Asian region. Again, पाकिस्तान लोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है ये साउथ एशियन रीजन में, ये आपको बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। यू हैव टू राइट इट नीटली इन योर कॉपी एंड लर्न ऑल्सो, एंड इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 4. Okay students, I hope it will help you doing this worksheet. Do this all work in your copy neatly after filling up the index page. Okay students, thank you. Allah Hafiz.